Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the lecture number 29 of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, I hope that you are fully understanding the concepts that I have been imparting and discussing with you. We are now almost at the end of the course, so we are now going into the abstract level concepts. We will start the today's lecture as usual with the summary of our last lecture. In our last lecture, we have started another abstract data type called graphs. Graph is an abstract data type that is meant to implement the graph concept from mathematics. A graph data structure consists of a finite and possibly mutable set of ordered pairs called edges or arcs or links of certain entities which can be called nodes, vertices, terminals, or endpoints. An edge is an ordered pair xy is said to be point or go from x to y. The vertex may be part of the graph structure or it may be the external entities represented by integer indices or references. A vertex may exist in a graph and not belong to an edge. It is possible. A graph data structure may also associate to each edge some edge value we call weight, such as a symbolic label or a numeric attribute, means sometimes it is also called cost, capacity, length, etc. So we can define a graph as an ordered pair G and ordered pair of VE consists of two sets, a finite non-empty set of vertices VG, a finite possibly empty set of edges EG, which is a two-element subset, and it is a subset of V into V. So now comes to the terminology of the graph. We discussed that an undirected graph is one in which pair of vertices in an edge is unordered. So UV equals VU. For all V and V and V, they are not V to V is not belongs to E, means a set of edges. It means no self loops are allowed. A directed graph is one in which each edge is a directed pair of vertices UV and is an edge from U to V, denoted by U going towards V. And UV may not be equals to VU set. So the directed graphs are not symmetric and self loops are allowed. It means an ordered pair V on V can belongs to the set of edges E. We also define the term weighted graph. Each edge has an associated weight given by a weight function. A dense graph means where the number of edges is almost equals to square of number of square of the vertices, and sparse graph is where the number of edges is very less as compared to V square. The order of a graph is the number of vertices. The graph size is basically all the number of edges denotes the size of the graph. The degree of a vertex is the number of edges that connect to it, where an edge that connects to a vertex at both ends, a loop means in that case it will be counted twice. Adjacency relationship means if U and V belongs to E, then vertex V we can say is adjacent to U. And the edges E of an undirected graph G induce a symmetric binary relation on V that is called the adjacency relationship of G. Specifically for each edge, the vertices U and V are said to be adjacent to one another, which is denoted by U and tilde sign V. So adjacency relationship is symmetric if G is undirected, not necessarily if G is directed. So if G is connected graph, there is always a path between every pair of vertices. And furthermore, if we say that if E number of edges is equals to 1 less than the number of nodes, then the graph is a tree. So for the path for every part of vertices, the number of edges should be greater than or equals to V minus 1. When E becomes V minus 1, then it means it's a tree, not a graph. Basically, it's a tree is a subset of graph. The undirected graph is is one in which edges have no orientation. It means the edges AB is identical to the edge BA,
means if you go from A to B and B to A, it's the same thing. They are not ordered pairs, but sets UV or multi-sets of vertices. VO VI is equal to V1 V0. Directed graph is an ordered pair with a set of those elements where vertices or nodes, and A is a set of ordered pairs of vertices called arcs, directed edges, or arrows. An arc is considered to be direct from X to Y is called the head, and Y is called the tail of the arc. Y is said to be a direct successor of X, and X is said to be a direct predecessor of Y. If a path leads from X to Y, then Y is said to be a successor of X and reachable from X, and X is said to be a predecessor of Y. And the arc YX is called the arc XY inverted. Also, a directed graph is called symmetric if every arc in D, the corresponding inverted arc, also belongs to D. So we can say a symmetric loopless directed graph contains the half number of arcs in D. The edge is said to be incident with the vertices it joins. For example, AB, it means that edge is the incident to B. If an edge that is incident from and into the same vertex, say DD or CC, we call it a loop. Two vertices are said to be adjacent if they are joined by an edge. And a vertex which is not joined with any other is called an isolated vertex. So the edges, they can be drawn in a straight line or it can be curved. So the geometry of drawing has no particular meaning in graphs. So if you do it like that, they are the same, it means isomorphic graphs. The subgraph is said to be a subgraph if the every edge is the subset of the parent graph and V1 is a subset of V, such that edges in E are incident only with the vertices in V1. Spanning subgraph is said to be a spanning subgraph if it contains all the vertices of G. And an undirected graph is said to be connected if there exists a path from any vertex to any other vertex. Otherwise, it is said to be disconnected. A graph is said to be completely or fully connected or strongly connected if there is a path from every vertex to every other vertex. And a path in a graph is a sequence of vertices such that from each of its vertices called its end to the next vertex in the sequence. A path may be infinite. But a finite path always have a first vertex called the start vertex and a last vertex, we call it end vertex. So both of them are called the terminal vertices. The other vertices in the path are called the internal vertices. A cycle basically is a path such that the start vertex and the end vertex are the same. The choice of the start vertex in the cycle is arbitrary. This same concept applies to the both directed and undirected graphs. And then we call it a path with no repeated vertices is called a simple path, and a path is said to be elementary if it does not meet the same vertex twice. A path is said to be simple if it does not meet the same edges twice. A cycle with no repeated vertices or edges aside from the necessary repetition of the start and end vertex is called a simple cycle, and the weight of a path is the weighted graph is the sum of the weights of the traversed edges. We also talk about the circuit elementary degree. The degree of a vertex is the number of edges incident to it. Two vertices are neighbor or adjacent if there is an edge between them. So two edges are neighbors or are adjacent if they share a vertex or as an endpoint. And directed graph is a strongly connected component in a subgraph in which every pair of vertices is strongly connected. Then we talk about the representation of graphs. There are two types of representation. We can either have an array-based representation of graphs, or we can have a linked list representation of graphs. So in the array-based, we call it as an adjacency matrix. So it's a two-dimensional V into V matrix. It number vertices from 1 to V in the same arbitrary manner. We have to use a two-dimensional matrix. Row I has the neighbor information about vertex I,
and if there is an edge between vertices, then we store it as an 1, otherwise we store 0. And in the case of undirected graphs, the matrix A equals to the transpose of matrix A. It means it's always symmetric. The weight of the edge ij is simply stored as the entry in the ith row and the jth column of the adjacency matrix. There are some cases where 0 can also be the possible weight of the edges. Then we have to store some sentinel value for non-existent edge, which can be a negative value. Since weight of the edge is always a positive number. The space complexity for adjacency matrix is V square, not memory efficient for large graphs. And for the time complexity, to list all vertices adjacent to U, it is basically big O to the order of V, where V is the number of vertices. And time is to determine that if U and V means the edges belong to it, it's always, in the case of adjacency matrix, is a constant big O to the order of 1. Because you just gave the word U and V are the two subscripts, and you just access and say it is whether it is 1 or 0. If it is 1, it means there is an edge. If there is 0, it means there is no edge. Advantages for the adjacency matrix is it is preferred if the graph is dense, that is the number of edges is close to the number of vertices square, or if one must be able to quickly look up if there is an adjacency edge connecting between the two vertices, and it is quite simple to program. The second representation is the linked list. We call it adjacency list. Consists of an array of V, means vertices list, one list per vertex, and it consists of all the for each element it has a pointer to the list of all the edges for that vertex. If weighted, you have to store weight also in the adjacency list. The linked list representation is space efficient when the graph is sparse, means few edges, easy to store additional information in the data structure, and it can be modified to support many graph variants. The disadvantages of the link-based representation is that if you have to determine that is an edge is there or not, it is not so efficient. You have to search in the use adjacency list, so it's the complexity is big O to the order of degree of U, and it can be most of all, means vertices is the worst case. Then we talk about the common operations of graph. The common operations can be, you can have the adjacency test, whether there is an edge from node X to node Y. We can write an operation for the neighbors of X. It means list all the nodes Y such that there is an edge from X to Y. You can add edge vertices, or you can add an edge from X to Y if it is not there. You can delete an edge if it is not there. If it is there, you can get node value, you can set the node value, and for that structure, for the weighted graphs, you can also have to get the edge value, and you have to store the edge value. Then we talk about the time complexity, means the storage in the case of adjacency list. The storage has a big O to the order of V plus E, where V is the number of vertices and E is the number of edges. Add vertex and add edge is basically constant, big O to the order of 1. Remove edge and remove vertex is big O to the order of E. And query, that if vertices V and U are adjacent, is basically depend on the number of big O to the order of V. For adjacency matrix, storage is big O to the order of V square. Add vertex, big O to the order of V square. Add edge, constant, big O to the order of 1. Remove vertex is again big O to the order of V square. Remove edge and query are basically constant, big O to the order of 1. Then in the end, we discussed the graph traversals, two techniques, breadth first search and depth first search. The breadth first, we discussed the algorithm for the breadth first search for the undirected, mark all vertices as unvisited, initialize a queue to empty, find an unvisited vertex and apply breadth first search to it. In breadth first search, add the vertex neighbors to the queue. Repeat, extract a vertex from the queue and add its unvisited neighbors to the queue. Whereas breadth first traversal method tend to traverse very wide and short trees. The depth first search
Given an input G and a source vertex X from where this searching starts, we first have to visit the starting node, and then we travel through each node along a path which begins at S. That is, we visit a neighbor vertex of S and again a neighbor of S, and so on. The implementation of depth first search is almost the same, except a stack is used instead of a queue. And a depth first traversal method tends to traverse very long and narrow trees. So this was the summary of our last lecture. So now we start today's lecture. In today's lecture, we'll discuss the shortest path problem for the graphs, and we will discuss three algorithms: Dijkstra's algorithm, Bellman-Ford algorithm, all pairs shortest path. Then we'll talk about spanning tree and a variant of spanning tree, that is the minimum spanning tree. And then we'll discuss the two algorithms for traversing and creating the minimum spanning tree, means Kruskal's algorithm and the Prim's algorithm. The shortest path problem is the problem of finding a path between two vertices or nodes in a graph such that the sum of the weights of its constituent edges is minimized. Shortest path बेसिकली हम अनडायरेक्टेड ग्राफ में हम जरा थोड़ा सा ज़्यादा, डायरेक्टेड ग्राफ में भी देख सकते हैं. इसमें हम जो वेटेड, ये वेट्स के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि जो आपका सोर्स वर्टेक्स है और जो आपका डेस्टिनेशन वर्टेक्स है उसके दरमियान डिफरेंट पाथ्स हैं. तो आपने ये देखना होता है कि कौन से पाथ से ये शॉर्टेस्ट होगा जिसका वेट सबसे कम होगा, कहाँ से हम मिनिमाइज होकर जा सकते हैं. This is very analogous to the problem of finding the shortest path between two intersections on a road map. And vertices correspond to the intersections, and edges basically they correspond to road segments, and each weight is by the length of its road segment. तो undirected के लिए अगर हम उसको formally define करें तो two vertices are adjacent when they are both incident to a common edge. When they are, हम दो vertices को adjacent उस वक्त कहते हैं कि जब एक common edge पे एक तरफ एक हो दूसरी तरफ दूसरा हो. And path जो है in an undirected graph is a sequence of vertices P, जिसमें कि V1, V2, V3, V4, V5, so on up till Vn, and they all belongs to V into V into V into V के सेट में होता है. Such that कि Vi जो है वो Vi plus 1 का adjacent है, और इसमें जो I है it should be greater than or equals to 1 and less than n. सच जो पाथ है जो हम जिसको हम P कह रहे हैं इज पाथ ऑफ लेंथ n हम कहेंगे फ्रॉम V1 टू Vn, जिसमें Vi वेरिएबल्स हैं. देयर नंबरिंग हियर रिलेट्स टू द पोजीशन इन द सीक्वेंस एंड नीड नॉट टू रिलेट टू एनी कैनोनिकल लेबलिंग ऑफ द वर्टेक्स. Let E be the edge incident to both Vi and Vj. अब ये Vi और Vj दो वर्टिसेस के दरमियान जो एज है उसको हम E कह रहे हैं. तो अगर हम गिवन अ रियल वैल्यूड वेट फंक्शन जिसमें E belongs to E is having the weight R and an undirected simple graph G, तो हम शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो Vi से Vn तक हम कह सकते हैं कौन सा पाथ होगा, that cover all possible n minimizing the sum. समेशन ये आपको सामने फंक्शन मैंने दिया हुआ है, I from 1 to n minus 1. फंक्शन क्या है, Ei और I plus 1. ये आपकी एडजेसेंट वो होने चाहिए. When the graph is weighted, तो उसमें हम कहते हैं कि E is belongs to C and where C is the subset of R plus. And this is equivalent to finding the path with fewest number of edges. तो हम अगर उसको कहें कि let हम assume करते हैं कि G is a graph और उसमें V जो है वो nodes हैं, E is the edges, V weighted directed graph है. Now we are considering the directed path. तो उसमें जो आपका है let P is the path from V0, V1 up to Vk, P a path from V0 to Vk. तो इसमें जो length of the path होगी वो basically कहाँ से होगी, weight of path
is basically sum of the weight of all the paths from bi minus 1 to bi. तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है फ्रॉम u टू v हम ये कह सकते हैं, जिसको हम डिनोट करें ये डेल्टा सिग्नल से, कि इट इज अ मिनिमम बेसिकली द समेशन ऑफ द वेटेड पाथ, एंड इफ अ पाथ इज फ्रॉम देयर एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम u टू v. ये जो शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड द सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द फॉलोइंग वेरिएशंस, की और वेरिएशंस भी हैं. तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम वो डिफरेंट है सिंगल पेयर से, इन विच वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सोर्स वर्टेक्स v टू ऑल द वर्टिसेस इन द ग्राफ. सिंगल सोर्स है और आपके बाकी डेस्टिनेशन तमाम अदर जो ग्राफ्स है वो जो है वो वर्टिसेस दे आर ऑल दी डेस्टिनेशंस. और जो सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है इन विच वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ऑल वर्टिसेस in the directed graph to a single destination vertex v. इसको हम reduce कर सकते हैं. This can be reduced to a single source shortest path problem by reversing the arcs in the directed graph. The all pairs shortest path problem जो है in which we have to find the shortest path between every pair of vertices v and v dash in the graph. These generalizations have significantly more efficient algorithms than the simplistic approach of running a single pair shortest path algorithm on all relevant pair of vertices. शॉर्टेस्ट पाथ की एक एग्जांपल देखते हैं. आपको फिगर में मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप ये देखें तो देयर इज अ पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम 1 to 7. डायरेक्ट पाथ है, उसका वेट जो है पाथ लेंथ आप उसको कह लें या वेट कह लें वो 14 है. अब अगर हमने 1 से 7 की तरफ जाना हो तो हम 1 से 3, 3 से 6 और 3 से देन फ्रॉम 6 to 7 भी जा सकते हैं. अगर हम सम ऑफ वेट्स काउंट करें तो ये 8 + 2 + 1 ये 11 होगा. 7 के जाने के लिए हम 1 से 3 पे जा सकते हैं, फिर वहां से 5 और 10. इट मीन्स 2 + 3 + 5 15. फिर हमने अगर जाना हो तो हम 1 से 4 पे जा सकते हैं और 4 से आगे हम 3 के साथ 7 पे जा सकते हैं. तो 1 से 4 तक वेट है 16, 4 से 7 तक वेट है 3, तो 16 + 3 19. इस पाथ का जो वेट है वो 19 आ रहा है. अब चौथा पाथ इसमें अगर हम देखें तो 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, तो 1 से 2 6, 2 से 5 4, ये मीन 6 + 4 10 हो गया. 5 + 7 ये भी 10 है, तो 20 हो गया टोटल. फिर आप जो है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 7, तो 1 से 2 6 है, देन 5 है, देन 3 है. 6 + 5 11 + 3 14. अब यहाँ पर 14 है, वहाँ पर आपके 16 + 3 19 बन रहा है. फिर वहाँ से हमने दूसरा जो देखा था तो उसके हिसाब से वो 15 बन रहा था. तो पाथ जो है इस केस में 14 ही सबसे, बल्कि 11 जो है 1 3 6 7 ये आपकी 11 ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ. Another path from 1 to 7 path length 11 है. There are two paths, तो which one is the shortest? जारी बात है जो 11 रहा है वो शॉर्टेस्ट है. यूनिकनेस ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ. क्या शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो नेसेसरीली यूनिक होना चाहिए? तो ये हम दो ग्राफ आपके सामने मैं रख रहा हूँ. पहला ग्राफ जो लेफ्ट साइड वाला है उसमें अगर आप देखें तो अगर आप 0 3 9 से देखें तो वो भी जो है आपका 3 + 6 9 और फिर वहाँ से 11 पर हमने आना हो डेस्टिनेशन, वो 2 भी उसमें शामिल है. तो 3 6 0 से 3, 3 से 9, 9 से 11 भी आप आ सकते हैं. तो ये पाथ की भी टोटल वेटेज 11 है. और अगर हम 0 से 5 और 11 पर आ जाएं तो इसकी भी 11 है. तो इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि शॉर्टेस्ट पाथ एक ही है, डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं. अब जैसे हम राइट साइड वाले को अगर हम देखें तो वो इसमें वेट थोड़े से अगर हम ये डिफरेंट हैं तो इसमें हम जो है वो 0 3 5 9 और फिर वहाँ से 11 और 0 3 5 और 11 डायरेक्ट भी जा सकते हैं. अगर हम एक रूट से देखें 3 + 2 + 4 + 2, 3 2 5 4 9 2 11 11 बन रहा है. और अगर हम 0 3 5 11 से भी आएंगे
तो ये भी 11 बन रहा है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो आपका ग्राफ में एक ही हो। सिंगल सोर्स सिंगल डेस्टिनेशन को हम देखते हैं, जिसको हम पॉसिबली ग्रीडी एल्गोरिथम से कर सकते हैं कि आपका सोर्स भी सिंगल है और सिंगल डेस्टिनेशन है, नॉट ऑल। तो अब इसमें हम ये क्या करते हैं कि ग्रीडी एल्गोरिथम क्या है कि यू लीव द सोर्स एल्गोरिथम वर्टेक्स यूजिंग द चीपेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ and leave new vertex using the cheapest edge subject to the constraint that a new vertex is reached. जब तक तो continue until destination is reached. अगर एक पॉसिबल ग्रीडी एल्गोरिथम है कि जब हम स्मॉल से शुरू करें फिर आगे से स्मॉल से आगे चलते जाए, इसको हम देखते हैं। तो इसमें अगर हम वही वाला ग्राफ देखें तो पहले से हमने लीव किया तो शॉर्टेस्ट क्या था, तो पहले से अगर आप देखें तो 3 पाथ लीव कर रहे हैं। अगर हम एजेस देखें तो एक 1 से 3 है जिसके वेट 2 है, 1 से 4 है जिसका वेट 16 है और 1 से 6 है जिसका वेट 6 है। इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 ग्रीडी एल्गोरिथम, तो आप 1 से 3 पे चले जाएं। अब 3 से आगे जो है वो आप 6 के जरिए भी जा सकते हैं, 5 के जरिए भी जा सकते हैं और थ्रू 4 भी जा सकते हैं। तो हम 5 की तरफ जाते हैं। अब 2 की तरफ देखें तो उसमें सबसे जो मिनिमम है वो 5 की तरफ है, 3 हम उस पर नेक्स्ट उस पर चले गए। अब 5 से आगे जो है जो आउटगोइंग नोड्स हैं वो या तो वो 10 वाला है या 4 वाला, तो मिनिमम कौन सा है? 4 वाला, हम 4 वाले पे चले गए। आज हम 4 से पहुंचे तो वहां से एक ही रास्ता है 7 पे जाने का, वो 3 के जरिए, उसका वेट 3 है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो पाथ लेंथ 3 + 2 = 5 + 4 9 + 3 12। और जबकि हमने आपको पिछली एग्जाम थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमने जब इसको रफली अपने हिसाब से देखा था तो 1 3 6 और 7 जो है ये नंबर, ये पाथ लेंथ 11 है जो सबसे शॉर्टेस्ट है। तो इसमें जो ये जो ग्रीडी एल्गोरिथम अभी हमने एक सिंपल सा देखा, तो इसके जरिए हमें लाजमी नहीं है कि वी गेट दी शॉर्टेस्ट बात, तो हम एल्गोरिथम इट मीन्स डजंट वर्क प्रॉपरली। तो शॉर्टेस्ट पाथ की प्रॉपर्टीज को एक दफा हम फिर देख लेते हैं कि ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर होता है कि इफ द पाथ P इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन S एंड V, दो नोड्स के दरमियान, देन ऑल सब पाथ्स ऑफ P आर शॉर्टेस्ट पाथ। तो उसके जितने भी सब पाथ ऑफ होंगे P के वो तमाम के तमाम छोटे होंगे। लेट P1 बी दी XY सब पाथ ऑफ शॉर्टेस्ट SV पाथ P एंड लेट P बी दी एनी XY पाथ। तो हमें ये कहना पड़ेगा कि वेट ऑफ P1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू वेट ऑफ P2, अदरवाइज हम P पर ही जाएंगे। P इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ, SV का पाथ शॉर्टेस्ट नहीं है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को भी हमने देखने के लेट डेल्टा UV जो है बी द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, ये हमने याद रखना है सिंबल को, ये लेंथ के लिए है। अगर वो लेंथ है ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, तो इफ x इज वन वर्टेक्स अमंग द पाथ वर्टिसेस, देन हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा UV जो है वो सिग्मा जो है वो UX और XV के बराबर है। और अगर fx इज एडजेसेंट टू y है तो हम फिर ये कह सकते हैं कि जो लेंथ है UV की वो बेसिकली लेंथ ऑफ UV प्लस वेट ऑफ x और v का वेट भी होगा। रिलैक्सेशन क्या चीज है कि लेट d मींस डिस्टेंस विद द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स टू अ डेस्टिनेशन वर्टेक्स v। तो इसमें लेट हम ये भी अज्यूम करते हैं कि प्रेडिसेसर ऑफ v बी द प्रेडिसेसर वर्टेक्स x अलोंग अ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम s टू v। तो रिलैक्सेशन UV क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग बोथ द शॉर्टेस्ट पाथ एंड द प्रीडिसेसर v गोइंग थ्रू u। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वन जो है शॉर्टेस्ट पाथ v इज ग्रेटर देन शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ u प्लस वेट ऑफ u एंड v। तो हम ये कह सकते हैं कि d ऑफ जो है v इज इक्वल टू d ऑफ u प्लस u vu, और प्रीडिसेसर ऑफ v क्या होगा? u होगा। अगर हम इसकी रिलैक्सेशन की अगर हम ये देखें तो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस s जो है वो हम 0 कर रहे हैं, और जो v जो हमारी डेस्टिनेशन है उसको हम इन्फिनिटी कह रहे हैं फॉर एनी वर्टेक्स जिसमें v और s बराबर नहीं है। तो रिलैक्स में अगर आपके इसमें लेफ्ट साइड पर अगर आप ये देखें तो उसमें अगर s आपका है वहाँ से u से v की तरफ जाएं और डायरेक्ट भी है तो उसमें टोटल डिस्टेंस v जो है वो 9 बन रहा है। तो रिलैक्स का मतलब क्या है कि अगर हम डायरेक्ट में बैठे तो 9 है, अगर हम s और u के जरिए आए
तो वो हम देखेंगे कि डी यू जो है वो 5 है एंड यू टू वी जो है वो 2 है, इट मीन्स ये 7 हो जाएगा। तो इस तरीके इस पाथ से जो है वो डिस्टेंस जो है वो कम है, तो हम इसको कहेंगे कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ये रिलैक्स हम कर रहे हैं कि इस पाथ में रिलैक्सेशन है। अगर हम उसके साथ करस्पॉन्डिंग दूसरा देखें कि आप एस और यू और वी और डी वी जो है वो उससे आ रहा है, तो यू और वी के दरमियान वेट 2 है, तो डी यू जो है वो 5 है एंड डी वी विल बी 6। और आफ्टर दिस ऑपरेशन भी अगर आप ये देखें तो वो रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि आप उधर से आए या उधर से आए इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो वो भी फिर जो है उनको फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा, इसलिए हम उसको कहेंगे कि इस केस में ये अनचेंज्ड है। अब हम पहला एल्गोरिदम देख लेते हैं जो कि डायस्ट्रास एल्गोरिदम इसका नाम है, जिसमें जे और के साइलेंट डच साइंटिस्ट है। 1959 में उन्होंने पेपर शाया किया था। इसमें वो बेसिकली कह रहा है कि जो आपका डेस्टिनेशन है ऑफ वर्टेक्स डी, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स एक्स इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एस एंड वी। और डायस्ट्रास एल्गोरिदम जो है इट कंप्यूट्स द डिस्टेंसेस ऑफ ऑल द वर्टिसेस फ्रॉम अ गिवन स्टार्ट वर्टेक्स एक्स। ये अजम्पशन इसमें जो एल्गोरिदम है वो ये है कि ग्राफ आपका कनेक्टेड है एंड एजेस आर अनडायरेक्टेड है एंड द एज वेट्स आर दे आर नॉन नेगेटिव, इसमें माइनस नहीं होगा, दे विल ऑलवेज बी 0 और पॉजिटिव वैल्यू। हम बेसिकली क्या करेंगे कि वी विल ग्रो अ क्लाउड ऑफ वर्टिसेस बिगिनिंग विद एस एंड इवेंचुअली कवरिंग ऑल द वर्टिसेस। हम एक पहले क्लाउड बनाएंगे और उसमें हम ऐसे स्टार्ट करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ के जरिए हम तमाम वर्टिसेस को कवर करेंगे। वी स्टोर्ड विद ईच वर्टेक्स वी अ लेबल डी ऑफ वी मीन्स के उसका जो डिस्टेंस वहां तक बन रहा है रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस ऑफ वी फ्रॉम एस इन द सब ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ द क्लाउड एंड इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस। तो हम एवरी स्टेप पर क्या करेंगे, वी ऐड टू द क्लाउड द वर्टेक्स यू आउटसाइड द क्लाउड विद द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लेबल डी यू, कि हम वर्टेक्स वी जो कि इस वक्त क्लाउड से आउट है, वो जो इसका सबसे स्मॉलर डिस्टेंस लेवल होगा उसको हम क्लाउड के अंदर ऐड कर लेंगे। फिर हम जो है उसके हिसाब से वी अपडेट द लेबल्स ऑफ द वर्टिसेस व्हिच आर एडजेसेंट टू यू। ये आपको इस एग्जांपल के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम एक एज ई को देख रहे हैं कि जिसका वेट जो है कि यू इज द वर्टेक्स मोस्ट रिसेंटली एडेड टू द क्लाउड, जेड इज नॉट इन द क्लाउड, एक्स जो है ऑलरेडी क्लाउड में है, जेड क्लाउड में नहीं है। तो डिस्टेंस ऑफ यू जो है फ्रॉम सोर्स इज 50 है और इसका जो डिस्टेंस जेड आ रहा है वो 75 है। तो यहां पर अगर हम देखें तो डिस्टेंस यू के बाद अगर हम वो देखेंगे तो उसमें हम उसको अपडेट करेंगे कि जो जेड का डिस्टेंस है, क्योंकि वो इस क्लाउड के अंदर जो है वो डी यू 50 है और ई का 10 है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो अब हम ये मॉडिफाई कर देंगे कि आफ्टर दिस क्लाउड z विल बी एट 60, तो उसको हम और ये अब ये देखें कि द रिलैक्सेशन ऑफ एज ई जो है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर एज ई आ रहा है, तो ये अपडेट करता है डिस्टेंस डी जेड को एज फॉलोज। वो कैसे कि डिस्टेंस डी जेड मिनिमम लेगा डिस्टेंस, वो डी मीन्स दी शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ जेड एंड इसको हम कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ मिनिमम जो है यू प्लस वेट ऑफ वी के साथ हम इसको चेक करेंगे। एग्जाम्पल है, हम इसमें देखते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं 0 से, स्टार्टिंग नोड हमारा 0 है, तो वहां से डिस्टेंस अब ये देखें कि डी की तरफ हम जाएं या सी की तरफ जाएं या बी की तरफ, बी की तरफ 8 है, सी की तरफ जाएंगे 2 है, और हर वर्टस के आप एंड पे जो है वो हम आपको उसका नोड भी बता रहे हैं कि उसका वेट टोटल वेट क्या बन रहा है। अगर हम ए से बी पे ऊपर देखें तो वो 8 है, सी के ऊपर 2 है, डी के ऊपर 4 है, क्योंकि ये डायरेक्ट ए से कनेक्टेड है। तो अब आपका सबसे छोटा जो है वो चूंकि ए सी बना है तो हमने उसके ऊपर लिख लिया 2, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब उसका कलर जो एडजेसेंट नेबर्स है उनको ऐड करेंगे और इस तरह ऐड करेंगे कि उसके अंदर वैल्यू मिनिमम हो। तो हम क्या करेंगे, फिर देखें जो डी सी और बी है, ये आपका जो है वो ये 3 नोड्स हैं जो एक के साथ कनेक्टेड हैं। तो उसमें जो है वो डी की पे 3 बनती है, 0 सी पे 2 है, बी पे 8 बनता है।
तो डी पे जो 3 वाला है हम उस पर चलेंगे, क्योंकि ए सी से डी की तरफ जाएंगे, और फिर वहाँ से आपका ए की पाथ है वो 5 है, वो हम एफ की तरफ चले जाएंगे। तो वहाँ से हमें पता लग जाएगा। ये आप ये देख रहे हैं कि बी की वैल्यू भी चेंज हो रही है, ई की वैल्यू भी और एफ की वैल्यू भी। फिर उसके बाद जो है वो हम ये ए से हमने देख लेंगे कि एफ तक भी जाना है, तो वो हम उसका भी वेट वो देखेंगे कि किस रास्ते से जाएंगे। तो अभी आप ये देखें कि एंड पर जो है ये ए सी बी ई डी एफ ये सारे कनेक्टेड हैं थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ। तो डेक्स्ट्रास एल्गोरिथम को हम देख लेते हैं। ये इसको आपको जो एल्गोरिथम दे रहा है, डिफरेंट वेज टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम, और इसमें जो है हम यूज करेंगे एक प्रायोरिटी क्यू विच स्टोर द वर्टिसेस आउटसाइड द क्लाउड। की उसमें क्या होगी, डिस्टेंस होगा, और एलिमेंट क्या होगा कि उसमें वर्टेक्स होगा। इसके लिए 2 मेथड्स भी हम बीच में इस्तेमाल करेंगे जो लोकेटर बेस्ड है। अगर हम इंसर्ट करें के और ई तो वो हमें एक रिटर्न एलोकेटर करेगा, और अगर हम रिप्लेस करें की एल विद के इट विल चेंजेस द की ऑफ एन आइटम। एंड वी विल आल्सो स्टोर 2 लेबल्स विद ईच वर्टेक्स, मींस डिस्टेंस टीवी का लेबल और लोकेटर इन दी प्रायोरिटी क्यू। तो डेस्ट्रा डिस्टेंसेस का जो है इसमें ग्राफ जी है और एक ऐसा आपका सोर्स नोड है, वो हमें इनपुट है, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम एक न्यू हीप बनाएंगे, वो प्रायोरिटी बेस्ड होगी, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी क्यू होगी, उसका नाम हम रख रहे हैं की। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम ये देखें तो बेसिकली हम इसमें जो है इस एल्गोरिथम में 2 लोकेटर बेस्ड मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। एक है इंसर्ट के और ई विच विल रिटर्न द लोकेटर, और इसमें जो है वो रिप्लेस की एल विद के विच चेंजेस द की ऑफ एन आइटम। एंड वी विल आल्सो स्टोर 2 लेबल्स विद ईच वर्टेक्स, और हम उसमें डिस्टेंस रखेंगे जिसका डीवी होगा लेबल, और एक लोकेटर रखेंगे जिसका प्रायोरिटी क्यू में लोकेटर होगा। तो हम इसका डेक्स्ट्रा एल्गोरिथम देखते हैं जिसमें हम 2 इनपुट्स कर रहे हैं, जी और एस, वे जी इज द ग्राफ है और एस जो है वो आपका सोर्स नोड है। क्यू है, हम एक न्यू हीप बेस्ड प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, और फॉर ऑल जो है वो हम ये कहेंगे कि वर्टिसेस जो है वो बेसिकली जी वर्टिसेस का हिस्सा है। तो हम ये देखेंगे कि अगर आपका वी और एस जो वर्टिस है जो वो सोर्स के बराबर है, तो वो हम उसका डिस्टेंस सेट कर देंगे 0, और एल्स अगर वो उसके बराबर नहीं है तो हम उसका डिस्टेंस फिलहाल अज्यूम कर रहे हैं कि वो इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी है। अब हम क्या करेंगे कि गेट डिस्टेंस लेंगे वी और वी का, गेट डिस्टेंस लिया, उसका डिस्टेंस मिला, उसको वी के साथ डाल के हमने इंसर्ट कर दिया क्यू में, और उसका पॉइंटर में दे दिया एल में। अब जब तक क्यू आपकी एम्प्टी नहीं हो जाती, अगर आपका क्यू आपने रिमूव करना है मिनिमम, उसकी वैल्यू में दे देनी है यू को, तो फॉर ऑल ई इट बिलोंग्स टू इंसिडेंट एजेस, इसको हम कहते हैं रिलैक्स्ड एज ई, कि जिसमें आपका जी डॉट अपोजिट जो है वो हम जेड में स्टोर करेंगे, और उसके बाद हम गेट डिस्टेंस लेंगे यू का प्लस वेट लेंगे ई का, और उसको ऐड करेंगे, उसको आर में स्टोर करेंगे। और अब हम यहाँ आर को देख रहे हैं कि इफ आर इज ग्रेटर देन गेट डिस्टेंस जेड, तो फिर हम सेट डिस्टेंस करेंगे जेड और आर, और क्यू डॉट रिप्लेस की, और इसको हम कॉल कर लेंगे विद गेट लोकेटर जेड और आर के उनके साथ पैरामीटर्स के साथ। अगर हम डेक्स्ट्रास एल्गोरिथम का एनालिसिस करें तो ग्राफ ऑपरेशंस जो है वो मेथड है इंसिडेंट एजेस इज कॉल्ड वंस फॉर एवरी वर्टेक्स। इसका जो लेबल ऑपरेशंस है, वी सेट एंड गेट द डिस्टेंस एंड लोकेट लेबल्स ऑफ वर्टेक्स जेड, ये तमाम जो है डिपेंडेंट हो जाएंगे डिग्री ऑफ द जेड के ऊपर, बे गो टू द डिग्री ऑफ जेड टाइम्स, और सेटिंग और कोटिंग का लेबल जो है वो हम वो जो कि प्रायोरिटी क्यू में डाल रहे हैं, तो हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि दैट विल बी दी वो जो है वो सिंपल है, और ये कांस्टेंट टाइम बी गो टू द ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा। प्रायोरिटी क्यू के ऑपरेशंस क्या है कि ईच वर्टेक्स इज इंसर्टेड वंस इनटू एंड रिमूव वंस फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू, वेयर ईच जो इंसर्शन और रिमूवल है वो आपका बे गो टू द ऑर्डर ऑफ लॉग एंड टाइम कंज्यूम कर रहा है। The key of a vertex in the priority queue is modified at most degree of w times, where each key changes takes log of n times, logarithmic time में। तो हमने इसका अगर इसको अगर कैलकुलेट भी आप कर लेंगे तो डेक्स्ट्रास एल्गोरिथम runs in big go to the order of n plus m log n time, which is provided the graph is represented by the adjacency list structure
हमने ये रिसेंटली कहा था कि सम ऑफ ऑल वेजेस की जो डिग्री है ऑफ ऑल वो 2m के बराबर होगी। द रनिंग टाइम कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन m big O to the order of m log n since the graph is connected. Why Dijkstra's algorithm work? वो काम कैसे करता है कि Dijkstra's algorithm is based on the greedy method. It adds vertices by increasing the distance. Suppose if it doesn't find all shorter distances, then f be the first wrong vertex the algorithm processed, and well the previous node d on the true shortest path was considered its distance was correct, but the edge df जो है was relaxed and given that line time and given that time so that thus so long as जो आपका distance of f है वो d से बड़ा है, f distance cannot be wrong, that is there is no wrong vertex. Why the Dijkstra's algorithm doesn't work for negative weights? अगर आपकी weight जैसे हम ये f और c पे दिखा रहे हैं कि इसका weight -8 है, तो Dijkstra's algorithm is based on the greedy method. It adds vertices by increasing distance. If a node with the negative instant edge were to be added late to the cloud, तो होगा क्या? It could mess up the distances for vertically or vertices which are already in the cloud. अब यहाँ पर ये देखें कि c का जो true distance है वो 1 है, but it is ready in the cloud with dc of 5, उसके साथ ये already cloud हुई भी है. Dijkstra's algorithm की आप ये देखें, हमने 0 से किया, नेबर्स की तरफ देखा, उन पर वेट लगा दिया, कैलकुलेशन कर ली, इसको आउट कर दिया, फिर 2 से हमने देखा, 2 से इधर से भी देखा, हमने कैलकुलेट किया, वो भी इनसे कम वाली जो थी उसको लिया, बाकियों को छोड़ दिया. और ये देखें 3 को भी जो है वो देखें वेट्स ओवर द एजेस अगर आप देखें कि अब चेंज होना शुरू हो गए, तो आप ये देखें कि वो सारे जो हैं इन दी एंड आप ये देखेंगे कि वो इन्फिनिटी वाले भी एडजस्ट हो जाएंगे. उम्मीद है कि ये Dijkstra's एल्गोरिथम आपको बखूबी समझ में आ गया होगा. इसकी एनिमेशन बहुत सिंपल है. एक और वेरिएशन है फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, उसको हम कहते हैं बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम. इट वर्क्स, ये हमने कहा उसकी जो वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया था ये जो वेट होगा Dijkstra's एल्गोरिथम का, वो वेट जो है वो मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता. तो ये बेलमैन जो है जिसको नेगेटिव वेट एजेस को भी हैंडल करता है, ये इट एज्यूम करता है कि मस्ट एज्यूम द डायरेक्टेड एजेस and for otherwise we would have to negative weight cycles. अब आप कहते हैं कि iteration I करेंगे, we will find all the shortest path that use I edges. Running time इसका जो है वो big O to the order of nm means n multiply by m. अगर बेलफोर्ड में इसमें भी हम 2 ही हैं और इसमें हम क्या करेंगे, for all v which belongs to g of vertices, अगर v और s बराबर हैं तो हम set distance रखेंगे v, 0, else हम set distance रखेंगे, अगर वो उसके बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि सेट डिस्टेंस वो जो है वो v से लेके इन्फिनिटी तक है. एंड उसके बाद हम एक लूप लगा रहे हैं कि फॉर i 1 to n-1 डू, कि फॉर उसके अंदर एक नेस्टेड लूप है फॉर ईच e बिलोंग्स टू g डॉट एजेस. तो उसमें हम ये उसकी रिलैक्स डिग्री कर रहे हैं कि अगर g ऑफ ओरिजिन e जो है वो उसकी वैल्यू हम n को दे रहे हैं और अपोजिट की जो है वो हम दे रहे हैं z को. एंड गेट डिस्टेंस u प्लस वेट e उसको हम r को दे रहे हैं. अब हम नीचे से कर रहे हैं कि r ऑफ गेट डिस्टेंस z, तो फिर हम सेट डिस्टेंस करेंगे z, r. आई होप कि ये इसमें आपको इतनी समझने में प्रॉब्लम नहीं आई होगी. तो ये यहाँ पे जो लास्ट फॉर नेस्टेड लूप है, यहाँ पर हम वो रिलैक्सेशन वाली बात कर रहे हैं, चेक करके कि इसको वो हमने किसको सेट करना है. बेलमैन की एग्जांपल लेते हैं कि नोड्स आर लेबल विद देयर डी वैल्यू. तो आप ये देखें कि हमने 2 नोड्स के ऊपर जो 2 एजेस के ऊपर हमने जो वैल्यूज है वो माइनस में भी रखी हैं. तो वही पहला है, तो पहले से जो है वो 1 की तरफ एक -2 है, 4 है, 8 है, 3 एज जाते हैं. तो इसमें जो सबसे छोटा है वो -2 है, तो आप उसके आगे उस नोड के आगे लिख देंगे -2, उसका वेट आ गया.
अब 2 से अगर हमने आगे जाना है तो 4 तक 1 है, 8 तक 7 है और 3 तक इन्फिनिटी है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, वो 4 वाला है। तो उसमें हम जब करेंगे तो अब ये देखें एंड पे जहाँ पर हमने इनिशियलाइज शुरू में किया हुआ था कि या तो वो स्टार्ट वर्टेक्स को 0 कर दिया था, बाकी तमाम को इन्फिनिटी कर दिया था। तो विद एवरी साइकिल हम एजेस की वैल्यू जो है वो अब ओवरराइट करना शुरू हो गए। तो अब उसका जो है चूंकि शॉर्टेस्ट में 4 की तरफ है तो हम वहाँ से कैलकुलेट करके उधर लिख देंगे, लेबल मीन्स -1। इसके अलावा हमारा एक तीसरा एल्गोरिदम है जिसको आज हम देखेंगे, वो है ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ। We find the distance between every pair of vertices in a weighted order। हम तमाम जितने pair of vertices हम उनका find करेंगे and we can make इसलिए n calls to Dijkstra's algorithm if no negative edges which takes O जो है nm log n time। तो likewise जो है वो n calls to Bellman-Fordman would create big O to the order of n square into m time। और हम इसका जो है वो O3 n पावर क्यूब का भी रनिंग टाइम ले सकते हैं अगर हम उसके लिए डायनामिक प्रोग्रामिंग या विच इज सिमिलर टू द फ्लॉयड मार्शल एल्गोरिथम वो अगर हम इस्तेमाल कर लें। बट फॉर दिस कोर्स डायनामिक प्रोग्रामिंग इज आउट ऑफ कोर्स, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा राय नहीं रखूँगा। अब उसके लिए एज्यूम हम ये कर रहे हैं कि ऑल पेयर्स एल्गोरिथम का नाम है, पास हम ग्राफ कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं वर्टिसेस 1 से n तक। तो फॉर ऑल वर्टिसेस पेयर आई जे, अगर आई इज इक्वल टू जे के मुताबिक है तो हम डी नॉट में जो है वो वही आई की वैल्यू दे के हम कहेंगे 0 मूव कर देंगे। अगर आई जे एज है, ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे कि उसके वेट जो है वो हम उसके उसमें डाल देंगे। एल्स क्या है कि हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे विद इन्फिनिटी। तो अगर उसके बाद हम एक नेस्टेड लूप चला रहे हैं k1 to n, i1 to n और j1 to n, और यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि मिनिमम देख रहे हैं d of k - 1 ij, d of k - 1 ik प्लस d k - 1 kj, और उसका जो है वो हमें जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें डी के उसमें मिल जाएगा। तो हमने वो पूरा एरे जो 2 डायमेंशनल एरे है उसको हमने एज अ रिजल्ट ट्रांसफर करना है। तो इसमें आप ये देखें कि इट यूजेस ओनली नंबर 1 to k, सो कंप्यूट वेट ऑफ दिस एज, use only vertices numbered 1 to k - 1 and you should use only indices if it is a number from 1 to k - 1। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पैनिंग ट्री। A spanning tree T is of a connected undirected graph G is a tree basically composed of all the vertices and some or perhaps all the edges of G। Informally a spanning tree of G basically क्या है, selection of edges हैं G की के that form a tree spanning every vertex। यानी कि जितनी वो आप नंबर जो है वो ये हैवी एजेस में आपको इस ये पिक्चर में आपको नज़र आ रही होंगी कि इसमें जो है जो हैवी ब्लू लाइंस हैं ये स्पैनिंग ट्री को आपको बता रही है कि मींस कि जितनी मिनी जो है वो नंबर ऑफ आर्क्स के साथ आप तमाम नोड्स को कवर कर लें। तो हम कह सकते हैं कि एवरी वर्टेक्स लाई इन द ट्री बट नो साइकिल्स लूप्स आर फॉर्म्ड, वो भी हो गया। स्कैनिंग ट्री ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ जो है G कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ मैक्सिमम सेट ऑफ एजेस ऑफ G दैट कंटेन्स नो साइकिल और एज अ मिनिमम सेट ऑफ एजेस दैट कनेक्ट ऑल वर्टिसेस। तो इसकी एक वेरिएशन है मिनिमम स्पैनिंग ट्री जिसको हम MST भी कहते हैं। A minimum spanning tree or minimum weight spanning tree is then a basically spanning tree है with weight less than or equal to the weight of every other spanning tree। तो more generally हम कह सकते हैं कि any undirected graph not necessarily connected has a minimum spanning forest which is the union of minimum spanning trees for its connected components। तो यहाँ पर ये जो आपको तस्वीर में पिक्चर में जो स्लाइड में है तो इसमें आप ये देखें कि ये जो ग्रीन वाले एजेस हैं इसके ज़रिए हमने तमाम नोड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। स्पैनिंग ट्री की एग्जांपल देख लेते हैं कि वन वुड बी अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि किसी इलाके में जो है वो अपनी केबल्स बिछाना चाह रही है कम्युनिकेशंस के लिए। तो इफ़ इट इज़ टू कंस्ट्रेन टू बरी द केबल ओनली अलॉन्ग सर्टन पाथ्स, उनके साथ ही सिर्फ बरी कर सकते हैं, then there would be a graph comprising which points are connected to those paths। तो some of those paths जो है might be वो expensive भी हो सकते हैं because they are longer or they require the cable to be buried deeper। तो these paths would be represented by edges with larger weights।
तो स्पैनिंग ट्री है फॉर दैट ग्राफ वुड बी अ सबसेट ऑफ दोज पाथ दैट हैज नो साइकिल्स बट स्टिल कनेक्ट्स एवरी हाउस. तो देयर माइट बी सेवरल स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल एंड देयर माइट बी सेवरल स्पैनिंग ट्रीज जो है उसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है ये सिर्फ एक ट्री होगा विद द लोवेस्ट टोटल कॉस्ट. इट इज अगेन अ सबसेट ऑफ स्पैनिंग ट्री. स्पैनिंग ट्री इटसेल्फ सबसेट है ग्राफ का. तो हम स्पैनिंग ट्री को देखें. स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ G इज जस्ट अ सब ग्राफ दैट कंटेन्स ऑल द वर्टिसेस एंड इट इज अ ट्री. अ ग्राफ में हैव मैनी स्पैनिंग ट्रीज. जैसे ग्राफ A है उसके 4 वर्टिसेस हैं और उसके 6 एजेस हैं. तो उसमें जो सम स्पैनिंग ट्री बनता है कि जिसमें तमाम नोड्स कवर हो रहे हैं ये आपके सामने है स्क्रीन पर. डायग्राम में आपका काइंड ऑफ स्क्वायर बन रहा है मगर थर्ड पे भी जो है वो आपका ओपन एंडेड एक स्क्वायर है. और इसी तरह साइकिल जो है अगर आप आखिर में भी देखेंगे तो ये चारों उसी के स्पैनिंग ट्रीज हैं कि विद मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स आपने तमाम को कनेक्ट कर लिया. अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ है और ये उसकी वो कंप्लीट ग्राफ के 16 वेरिएंट्स आपको स्पैनिंग ट्रीज मिल जाएंगे. इनके पहले जो रो में जो आप 4 देखेंगे तो वो ओपन एंडेड है, 3 उसके साथ वो है. सेकंड में आपका एक क्रॉस है और एक वो है, उसके जरिए भी आप बना सकते हैं और तमाम 4 नोड्स कनेक्टेड हैं. थर्ड में आप देखेंगे तो एन जेड एन जो आपको सिंबल नजर आ रहे हैं तो इसके जरिए भी आप देखें कि 3 आर्क्स के जरिए आपने तमाम को रीएडजस्ट कर लिया. दीज आर ऑल सब ग्राफ्स या इनको हम स्पैनिंग ट्रीज कह रहे हैं. इसी तरह फोर्थ में भी अगर हम देखेंगे तो ये आपके सिमेंटिकली दीज आर ऑल सेम. तो अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है फॉर अ गिवन ग्राफ इज द स्पैनिंग ट्री ऑफ मिनिमम कॉस्ट फॉर दैट ग्राफ. तो अगर हम ये वाला वही एग्जांपल देखें तो इसमें चारों को एक तो हम जो है वो 4 कॉर्नर्स के वो जो है उसके साइड्स के साथ भी कर सकते हैं. अगर हम साइड्स के साथ करें तो वेट टोटल वेट क्या होगा 7 + 5 + 1 13 + 3 16 हो गया. और एक रूट हमारे पास ये भी है कि आप सोर्स अगर आपका 7 वाला है तो वहाँ से आप जाएं 7 जो है वो 3 की तरफ और वहाँ से आप चले जाएं 1 की तरफ और फिर वहाँ से चले जाएं 4 की तरफ और फिर वहाँ से आप 5 की तरफ. तो इस तरह आपका जो है ये करस्पॉन्डिंग जो है वो आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाएगा. आज हम इसके 2 एल्गोरिथम्स देखेंगे फॉर ऑब्टेनिंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री. एक क्रस्कल्स एल्गोरिथम है और एक प्रिम्स एल्गोरिथम. क्रस्कल एल्गोरिथम को देखें. इसको जो है टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ अ नॉवेल अप्रोच इज क्रस्कल्स एल्गोरिथम. जिसमें D जो है G हम एज्यूम कर रहे हैं कि इट इज अ अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है विद n वर्टिसेस और इसका स्पैनिंग ट्री एम्प्टी है. तो अब ये सबसे पहले क्या बनाएगा ये फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज बनाएगा. इनिशियली द फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ n सिंगल नोड ट्रीज एंड नो एजेस. के स्टार्ट लेंगे कि एक नोड है अब उसके साथ एज ही नहीं है. एट ईच स्टेप हम उसमें एक एक एज डालते जाएंगे द चीपेस्ट वन सो दैट इट जॉइंस द 2 trees टुगेदर. If there is a forum, if it were to form a cycle, अगर वो cycle बना रहा है, it will simply link 2 nodes that are already part of a singly connected tree, so that this edge would not be needed. इसके steps हम देख लेते हैं. The forest is constructed with each node in the separate tree. हम each node का separate tree बनाएंगे. The edges are placed in the priority queue until we have added n-1 edges. हम ये कर सकते हैं कि we can extract the cheapest edge from the queue if it forms a cycle. Rejected as we will add it to the forest. Adding to the forest will join 2 trees together. Every step जो है will have joined 2 trees in the forest together so that at the end there will be only 1 tree जो कि वो आपका ट्री होगा. ये आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिसमें अगर हम ये नोट देखें तो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ये है और उनके दरमियान अनडायरेक्टेड ग्राफ है. कंप्लीट ग्राफ है उसके ऊपर वो है वेट्स भी हर एज के ऊपर दिए हुए हैं. तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से आप ये देखें कि आपके जितने एजेस बन रहे हैं A से B को है वो एक एज है,
ए से डी की तरफ है, फिर हम बी के पास जाते हैं, बी से ए की तरफ है, और क्योंकि वो ये अनडायरेक्टेड है सिमेट्रिक, इसलिए वो तो रिपीट नहीं होगा। बी से सी की तरफ है 4, बी से डी की तरफ है 4, और बी से जे की तरफ है जो 10 है। फिर हम उसके बाद जो है वो अगर अब ये देखें नेक्स्ट सी पे चले जाएं तो सी और बी जो है ऑलरेडी आ चुका है, सी और ई जो है वो चूँकि वो भी आ चुका है, और उसके बाद सी ऑफ एफ की तरफ जाएंगे तो वो भी आ चुका है। उसके बाद हम डी की तरफ जाएं तो डी से ए की तरफ ऑलरेडी मौजूद था, डी से बी भी मौजूद था, मगर डी से एच 5 वाला वो नहीं था, उसको हमने ऐड कर लिया। डी से 6 की तरफ जो हम डी से जे की तरफ जाएं तो वो 6 का था, उसको भी ऐड कर लिया। फिर हम ई पर आएंगे तो ई से जी एक ही है वो, और वो हमने शामिल कर लिया, 2 है उसका, और ई से सी और ई सी दोनों बराबर है, इसलिए हम उसको शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह एफ पर जाएंगे, एफ और सी ऑलरेडी हो चुके हैं, एफ ऑफ जी आ जाएगा, और एफ ऑफ आई के साथ हम उसको कर लेंगे, उनके वेट्स लिख देंगे। फिर जी ई एफ जी पर जाएंगे तो जी से ई की तरफ भी जा रहे हैं और जी से एफ की तरफ भी जा रहे हैं, मगर आई की तरफ नहीं थे तो हम आई वाला शामिल कर लेंगे। जी से जे की तरफ भी ये 4 वाला है, उसको भी देख लेंगे। जी एच पे आएंगे तो ऑलरेडी एच और जे का इस तरफ है वो, उसको शामिल कर लेंगे। एच और डी ऑलरेडी हो चुका है डी एच के साथ। और आई की तरफ जाएंगे तो आई वाला सिर्फ आई टू जे वाले रह गया, बाकी तो सारे ऑलरेडी हो चुके हैं। और जब जे पे आएंगे तो वो हम ऑलरेडी सारे कवर चुके हैं। तो राइट साइड पे हम ये देखें कि एक सैंपल ग्राफ जो है उसके हमने जो आर्क्स जो नोड जो रिलेटिव वर्टिसेस हैं वो तकरीबन 16 बन गए हैं, वो हमने साइड पे लिस्ट कर लिए। उसके बाद हम एजेस को वेट वाइज सॉर्टेड कर लेंगे ताकि इन रियलिटी दे आर प्लेस्ड इन प्रायोरिटी क्यू विच इज़ नॉट सॉर्टेड, but sorting them makes the algorithm easier to realize। तो इसमें जो है वो अब ये देखिए 1 वाले 2 3 और 4 और 5 और सबसे आखिर में 10 वाला ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए। तो आपने ऐड एज किया, अब हम वो दोबारा से उसको ट्री की तरफ जा रहे हैं, पाथ की तरफ जा रहे हैं, ये उसको किया, वो नहीं तो उसको शामिल कर लिया हमने। सी और एफ उनको भी शामिल कर लिया, सी और ई फर्स्ट टाइम आ रहे थे, शामिल कर लिया। ई और जी ये भी फर्स्ट टाइम था, हमने इसको भी शामिल कर लिया। एच और जे ये 2 था, इसको भी हमने शामिल कर लिया। एफ ऑफ जी ये तो ऑलरेडी हुआ है, ये साइकिल बन जाएगा, तो हुआ तो नहीं है मगर साइकिल बन जाएगा, क्योंकि साइकिल है इसलिए हम इस एज को ऐड नहीं करेंगे, साइकिल नहीं बनाना हमने। उसके बाद जी और आई को कर दिया हमने, वो आप देखें जी और आई भी इसमें हमने शामिल कर दिया। और आई और जे इसको भी हमने, वो अब हम आई जे की तरफ देंगे तो वो शामिल नहीं है, तो देखें उसको भी शामिल कर दिया हमने। उसके बाद ए और बी जो हैं वो भी शामिल हो जाएंगे, ऐड एज करेंगे। और उसके बाद बी और डी को अगर हम देखें तो उसको हम नहीं करेंगे क्योंकि साइकिल बन जाएगा, इसलिए हम उसको ऐड नहीं करेंगे, साइकिल नहीं बनाना हमने। उसके बाद बी और सी को हमने कर दिया। फिर जी और जे को अगर हम देखें तो ये हम नहीं करेंगे क्योंकि ये साइकिल बना देगा। और उसके बाद अगर आप ये देखें एफ और आई को अगर हम बनाएंगे तो ये भी एक साइकिल बना देगा, उसको भी नहीं ऐड करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद डी और एच को अगर हम देखें, डी और एच को भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम इसको शामिल करेंगे तो वो फिर एक साइकिल बना देगा, ये जो आउटर से बन रहा है। और उसके बाद जो है डी और जे को भी हम इसलिए नहीं करेंगे कि वहाँ से करेंगे फिर साइकिल बन जाएगा, और बी और जे को भी नहीं करेंगे क्योंकि वो साइकिल बनाएगा, इसलिए हम जब उनको नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आप ये देखें कि अब आपका जो है वो कंप्लीट ग्राफ जो है वो था, और ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री शामिल हो गया है, वो बन गया है। और वो देखेंगे उसमें एवरी अदर नोड जो है वो कनेक्टेड है, और वो मिनिमम वाले चूँकि हमने शामिल किए हुए इसलिए उसका जो पाथ बनेगा सम ऑफ उसका वो सबसे
मिनिमम होगा, इसका सम ले हम इसका, तो ए से डी से ए 1 है, 1 और ए से बी 4 + 4 9, एफ तक 1 6 10, सी से ई 2 12 14 14 और 6 20 + 2 22 जो है उसके ज़रिए हम इस पर हमने देखने की मिनिमम स्पैनिंग ट्री के ज़रिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया। एनालिसिस अगर हम देखें क्लासिकल एल्गोरिथम का, तो रनिंग टाइम जो है उसका बिग m log n है, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ एजेस एंड n इज़ द नंबर ऑफ नोड्स, तो उसका जो लॉग ऑफ नोड लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ, तो ये हमारा रनिंग टाइम है। टेस्टिंग इफ एन एज क्रिएट्स अ साइकिल कैन बी स्लो हो सकता है अनलेस अ कॉम्प्लिकेटेड डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड यूनियन फाइंड स्ट्रक्चर इज यूज्ड, तो वो ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इट यूजुअली ओनली हैज़ टू चेक अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एजेस, but in some cases like if there are a vertex connected to a graph by only one edge and it was the longest edge, it would have to check all the edges. Now this algorithm works best of course if the number of edges is kept to a minimum. अगर जितने edges बढ़ाते जाएंगे तो उसमें इसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड होती जाएगी। Prim's algorithm एक दूसरा है। इस algorithm में we will start with one node, और इसमें हम क्या करेंगे कि if then it then one by one add a node that is unconnected to the new graph to the new each time selecting the node है कि whose connecting edge has the smallest weight out of the available nodes connecting edges। ये इस तरह हम इसको Prim's algorithm को चलाएंगे। इसके स्टेप्स क्या है कि अब हम एक न्यू ग्राफ बनाएंगे with one node from the old graph, while new graph has fewer than n nodes, जब तक वो n nodes से fewer हैं हम फाइंड करेंगे नोड फ्रॉम द ओल्ड ग्राफ विद द स्मॉलेस्ट कनेक्टिंग एज टू द न्यू ग्राफ, एज वहां से निकालेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे न्यू, तो एवरी स्टेप विल हैव जॉइंड वन नोड सो दैट एट द एंड वी विल हैव वन ग्राफ with all the nodes and it will be a minimum spanning tree of the original graph. ये आपका कंप्लीट ग्राफ है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब यहाँ से हम एक स्टार्टिंग एक नोड लेंगे, तो ये आपका ओल्ड ग्राफ था, वहाँ से हमने एक नोड लिया स्टार्टिंग ग्राफ, एक नोड ले लिया हमने ए। अब उसके साथ दो एजेस हैं, एक 1 वाला है, एक 4 वाला है। अब हम उसके साथ देखेंगे कि कौन सा जो है वो नोड जो है वो हमें सबसे कम देता है, वो डी वाला है, क्योंकि डी जो है वो आपका वेट जो है वो 1 जो है वो सबसे कम था, हमने उसको ले लिया। अब डी से आगे जो है वो जो एजेस आ रहे हैं वो 4 4 5 और 6, तो 4 4 मिनिमम है और वो बी की तरफ 4 जो है वो बी की तरफ जा रहा है, तो हम बी को शामिल कर लेंगे। अब हम बी और डी से अगर नेक्स्ट की तरफ जाएंगे तो डी से और बी से अगर आप देखें तो बी से एक 10 है, बी से 4 निकल रहा है और डी और आगे जो है वो एजेस जो आ रहे हैं वो 5 और 6 हैं, तो सबसे कम कौन सा है वो सी की तरफ जो जा रहा है, बी से सी की तरफ, हम उसको नोड को शामिल कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि उसमें सी से 1 और 2 है और 5 और 6 है, इधर 10 है और सबसे जो मिनिमम है वो 1 वाला है एज, तो उसको हम देखेंगे एफ का, तो उसको हम शामिल कर लेंगे। अब वहाँ से जो आगे जा रहे हैं तो दूसरे नोड की तरफ, अब इसमें 2 3 एफ से जो है वो 3 और 5 निकल रहा है, सी से 2 है जो नेक्स्ट की तरफ जा रहा है, बी से 10 है जो जे की तरफ जा रहा है, डी से 6 है और डी जो जे की तरफ जा रहा है और डी से 5, तो इसमें हम देखेंगे। अब उसमें देखेंगे वहाँ से भी हम साइड से उसमें से हम नेक्स्ट देखेंगे, तो अब हम उसमें देखेंगे तो ई इसमें शामिल हो जाएगा, सबसे मिनिमम ई वाला है और उसको उससे कंपेयर करेंगे तो हम उसको शामिल कर लेंगे। अब जो आपका ओल्ड ग्राफ है उसमें जी एच आई और जे ये रह गए, वहाँ से जो सबसे मिनिमम आ रहा है वो जी की तरफ आ रहा है, वो ई से जी जो 2 है वो आप ये देखेंगे कि सबसे मिनिमम है, तो उसको हम फिर नेक्स्ट टाइम उसको शामिल कर लेंगे, वहाँ से उसको रिमूव कर देंगे, इधर शामिल कर लेंगे न्यू ग्राफ में। अब जो वहाँ से एलिमिनेट जो एजेस हैं वो देखिए, ये दोनों ओल्ड ग्राफ में जो एजेस हैं जो हमने ब्लू में रखे हुए हैं वो सेम है, सिर्फ एक इसमें ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, उसमें वो नोड अभी रहते हैं तो वो हमने ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आप देखें बाकी जो आई है और एच जे है इसमें सबसे मिनिमम जी से आई की तरफ जा रहा है 3, तो हम नेक्स्ट टाइम उस नोड को शामिल कर लेंगे।
अब वो हम ये देखें तो उसमें हमारे पास जो है वो अब डी से जो निकल रहा है वो 5 और 6, और बी से 10 है, जी से 4 है, और आई से 3 है, और नेक्स्ट हमारे पास जे है और एच है। तो हम ये देखें कि सबसे मिनिमम जो है वो आई और जे के दरमियान है, हम उसको शामिल कर लेंगे तो वो बाकी हमारे ख़त्म होते जाएंगे। तो अब इसमें ऑलरेडी आप ये देखें कि जो राइट साइड पे न्यू ग्राफ है उसमें जो ब्लैक वाले एजेस हैं कलर्ड में हमने रखे हुए हैं वो ऑलरेडी वो आपका स्पैनिंग ट्री बन रहा है, और जो ब्लू वाले वो हमारे कैंडिडेट हैं फॉर द नेक्स्ट। अब एच में मिनिमम अगर आप ये देखेंगे तो वो जे से एच की तरफ है, अगर हम उसको शामिल कर लें तो वो इट विल बिकम दी सेम, वही हमारा स्पैनिंग ट्री। अगर आप ये देखेंगे तो वो कंप्लीट हो गया, 5 से नोड्स खत्म हो गए, यहाँ से हमने मिनिमम से वो फाइंड कर लिया है। तो नाउ आवर स्पैनिंग ट्री इज कंप्लीट। तो ये देखें वो आपको कंप्लीट ग्राफ था, और जिसको हमने की अगर इसका वही डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लें तो ये वही निकलेगा। डी से ए बी सी ये आपका 9 हो गया, सी से एफ 1 10, और सी से ई 2 12, ई से जी 2 14, और जी से आई 3, आई से जे 3, और जे से एच 2। तो अगर हम इनको तमाम को काउंट करें 1 + 4 + 4 is 9 + 1 10 + 2 12 + 2 14 + 3 17 + 3 20 + 2 22। तो उसमें देखने हमने उसमें जो है वो पूरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो अगर हम एनालिसिस इसका देखें तो जो आपका रनिंग टाइम है इसमें जो है बिग ओ में m + n log n है, वेयर m इज़ द नंबर ऑफ एजेस एंड n इज़ द नंबर ऑफ नोड्स। तो अगर जो है अगर हम इसको कंपेयर करेंगे क्रैस्कल से तो इसका टाइम जो है उसका m log n था, इसका m + n log n आ रहा है। तो इफ़ अ हीप इज़ नॉट यूज द रन टाइम विल बी बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ n² हो जाएगा इंस्टेड ऑफ अगर हम हीप नहीं तो अगर हीप की वजह से इसका जो है m + n log n आ रहा है। So unlike Kruskal's algorithm, it does not need to see all the graph at once. It can deal with it one piece at a time. It also doesn't need to worry if adding an edge will create a cycle, since the algorithm deals primarily with the nodes and they are not dealing with the edges. So for this algorithm, the number of nodes needs to be kept to a minimum in addition to the number of edges. So for small graph, the edges matter more, while for large graph, the number of nodes जो है वो ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसका भी देखना पड़ता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो इन आवर टुडेज लेक्चर हमने जो है वो जो है ट्रीज़ की कुछ एप्लीकेशंस देखी थी प्रॉब्लम्स के हवाले से। तो हमने 2 उसमें ज़्यादा रखा, एक शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम थी जिसमें हमने डेस्ट्राज एल्गोरिथम, बेलमैन्स फोर्ड एल्गोरिथम और ऑल पेयर्स का जो शॉर्टेस्ट पाथ है कि तमाम पेयर्स का जो है वो हम अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ वेरिएशंस देखें तो हमने वो तीनों एल्गोरिथम्स को देखा, उनके कॉन्सेप्ट्स को मैंने ज़्यादा फोकस रखा है और उनकी एग्जांपल्स के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और एल्गोरिथम भी आपके सामने रखा है। फिर हमने स्पैनिंग ट्री की बात की है। स्पैनिंग ट्री मीन्स कि विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जो हैं जो आपके उनके ज़रिए तमाम नोड्स कनेक्ट हो जाएं तो वो स्पैनिंग ट्री बनता है। तो उसमें मैंने आपको ये एग्जांपल के ज़रिए बताया कि एक ग्राफ के बहुत सारे जो है वो आपके स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं और मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो बेसिकली वेट्स हैं कि जो मिनिमम वेट्स के हिसाब से जो पाथ बनेगा जिसका वेट हिसाब से मिनिमम होगा दैट विल बी अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो उसमें हमने 2 एल्गोरिथम मैंने आपके सामने पे रखे, एक क्रस्कल्स एल्गोरिथम था और एक प्रिम्स एल्गोरिथम था। क्रस्कल एल्गोरिथम जो है वो एजेस के हिसाब से जो है नोड्स को भी ध्यान में रखता है प्लस मगर वो एजेस के हिसाब से देखता है और उसने वो एग्जिस्टिंग ग्राफ में से वो देखता रहता है और फिर वहाँ से वो दूसरे ग्राफ में डालता रहता है। तो उसमें जो है हम ये देखा है कि वो साइकिल जब न बने तो उसको ऐड नहीं करता नए ग्राफ में, तो उसके हवाले से पूरे जो है वो उसको एक नज़र में देखना पड़ता है उसे और वो नंबर ऑफ एजेस के हवाले से ज़्यादा देखता है और हमने एंड पे देखा कि वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमने बना लिया है। दी अदर वेरिएशन जो हमने उसका था उसकी जो कम्प्लेक्सिटी आई थी क्रस्कल एल्गोरिथम की दैट वाज बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ m log n थी और फिर हमने प्रिम्स देखा जो एजेस के जो नोड्स के हवाले से वर्टिसेस को ज़्यादा फोकस करता है और एजेस को नहीं करता।
तो उसमें इतने वो आपके जो है वो तमाम ग्राफ को एडवांस हर दफ़ा नहीं देखता। दैट्स वाई प्रेम एल्गोरिदम इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। और वेरिएशन थी, हमने उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी देखी, बिग O m प्लस n log ni। तो वो भी जो लार्जर ट्रीज हैं जिसमें नंबर ऑफ नोड्स ज़्यादा हों तो उसके लिए वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। उसमें हीप का इस्तेमाल हमने देखा था कि लाजमी है। दैट इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।